Hello everyone. Now as we are done with the discussion of motion in 1D, so from today onwards we will start the discussion of projectile and vectors. It is kinematics in 2D. Projectiles and vectors. In this, we will discuss the problems of towards IIT JEE screening. These are previous IIT JEE problems. These questions were asked previously in IIT JEE exams. So let's start with the first question. A person can throw a stone to a maximum distance 100 meter. The greatest height to which he can throw the stone is. So a person can throw a stone to the maximum distance, that is 100 meters. So what is the maximum distance to which a person can throw the stone? It will be its maximum range. So maximum range क्या होती है? U square sin 2 theta by g. रेंज मैक्सिमम कब होती है? जब थीटा कितना होता है? 45 डिग्री. सो इट comes out to be u square by g. This is the maximum range. So this is given to be 100 meter. So the greatest height to which he can throw the stone is. So what would be the greatest height? So you will find value of u square by g as 100. So height is how much? U square sin square theta by 2g. ठीक है? Now for this value to be maximum, इस वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. मतलब थीटा का कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. दैट मीन्स with the same initial speed, with this initial speed, उसे उस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करना पड़ेगा. ठीक है? सो दिस विल बी 1 u square by 2g and value of u square by g is 100. So this will be 100 divided by 2, that is 50 meter. Okay? It is option number C. Let's move on to second question. A cricket ball is hit at 45 degree to the horizontal with a kinetic energy K. The kinetic energy at the highest point is. देखो, इस बॉल को 45 डिग्री के एंगल में हिट किया गया है. ठीक है? सपोज इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? K इज हाफ m u स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर, राइट? तो सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है, तो इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m u स्क्वायर. दिस विल बी u cos 45 एंड दिस विल बी u sin 45. ठीक है? जब ये अपनी ट्रैजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट में होगा, दैट इज यहाँ कहीं होगा, तब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा. ठीक है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? नाउ सिंस देयर इज नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, there is no acceleration in horizontal direction, so horizontal force will be 0. So velocity will be how much? U cos 45. So at this point total velocity कितनी होगी? Total would be u by root 2, u cos 45. तो kinetic energy will be half m v square, that is half m u square by 2. Now this value is given to be k. Put this value. This comes out to be k by 2. Okay. So it is option number B. K by 2. Fine. So the next question that we're going to discuss is question number 3. In the arrangement shown in figure, the ends P and Q of an unstretchable string move downwards with speed u. Place a fixed mass m move upwards with speed of. So
ये पुले 1 है एंड दिस इज द सेकेंड पुले. ओके, दे आर फिक्स्ड. They are fixed. So this end of the pulley, this end of the thread, it is being pulled down with velocity u, and this end is also being pulled down with velocity u. ठीक है, तो ये जो मास m है, it is going up with velocity v. हमें ये velocity v निकालनी है. ठीक है, तो देखो ठीक है. सपोज ये जो लेंथ है दिस इज L. ठीक है, और ये जो लेंथ है ये है x. ये लेंथ है x एंड दिस एंगल इज थीटा. ओके, सो दिस विल बी हाउ मच? L cos थीटा, L cos थीटा एंड दिस विल बी L sin थीटा. ठीक है, ये हो जाएगा आपका L cos थीटा और ये हो जाएगा L sin थीटा. L cos थीटा sin थीटा हम बाद में लिख देंगे. हम बस अभी इतना लिख देते हैं कि ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ ये x के बराबर है मान लो, और ये जो लेंथ है ये y के बराबर है. ठीक है, ये पर्टिकुलर लेंथ y के बराबर है. नाउ इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड विथ वेलोसिटी v. ठीक है, इस ब्लॉक की जो स्पीड होगी, इस ब्लॉक की स्पीड v है, तो इस पॉइंट की भी ऊपर की तरफ स्पीड v होगी, ये कॉमन पॉइंट की. मतलब कि dy बाई डी टी जो है वो v के बराबर होगा. ठीक है, तो ये तो हमें समझ आ गया कि जो v है दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? दैट विल बी इक्वल टू dy बाई डी टी. ठीक है, नाउ दिस इज L, राइट? सो L cos थीटा, L cos theta is how much? Y. L cos theta is y. Differentiate with respect to time. So it will be dl by dt cos theta plus, sorry, cos theta minus sin theta into L. This will be equal to dy by dt. This is equation number 1. ठीक है, दोनों को डिफ्रेंशिएट किया. dl by dt cos theta minus sin theta into L will be equal to dy by dt. That is 1. Second is L sin theta will be equal to x. L sin theta will be equal to x. So dl by dt into sin theta plus sin theta का इंटीग्रेशन क्या होता है? सॉरी, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? cos theta plus cos theta into L is equal to dx by dt. dx by dt क्या होगा? इन दोनों लेंथ, इस मास के ऊपर जाने से क्या इन दोनों पुले के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर सेड टू बी फिक्स्ड. ये दोनों पुले जो है ये फिक्स्ड है, तो ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है. इसका मतलब कि x की वैल्यू कांस्टेंट है, तो dx by dt कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो वी नीड टू कैलकुलेट dl by dt. तो dl by dt is, this is dy by dt कितना होगा? No, we need to calculate dy by dt, sorry. So dy by dt that is v, it will be equal to dl by dt क्या होगा? dl by dt u के बराबर होगा. dl by dt means change of length with respect to time. Change of length, this length with respect to time. ठीक है, तो ये u के बराबर होगा u cos theta minus sin theta L. We need to calculate the value of cos theta and sin theta. dl by dt ये कितना हो जाएगा? u. So u sin theta is how much? Minus cos theta L. U sin theta will be equal to minus cos theta L. Put the values. dy by dt, that is v, it will be equal to u cos theta
u cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस थीटा इंटू एल डिवाइडेड बाई यू. वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल. एल की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. एल हो जाएगा u साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस ऑफ u साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा. तो माइनस साइन थीटा और l की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, माइनस u साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा. ठीक है, तो v किसके बराबर हो जाएगा, u cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस u साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. u को कॉमन आउट निकाल लो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u डिवाइडेड बाय cos थीटा. So finally the value of v comes out to be u divided by cos theta, where theta is variable. Theta variable होगा at any instant, इसकी वैल्यू u by cos theta के बराबर होगी. ठीक है, so option B is correct. Okay. Next is question number 4. A particle P is sliding down frictionless hemispherical bowl. It passes the point A at t equal to 0. At this instant of time, the horizontal component of its velocity is equal to v. A ball Q of a same mass as P is projected from A at t equal to 0 along the horizontal string AB with the speed v. Friction between the bead and the string may be neglected. Let Tp and Tq be the respective times taken by P and Q to reach the point B. Then you need to compare Tp and Tq. So this is a hemispherical bowl. ये एंड A है और ये वाला एंड B है. ठीक है, एक बॉल है, बॉल P, इसको A एंड से रिलीज किया गया और ये इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से पॉइंट बी में चले गई. इस बॉल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में टीपी टाइम लगा. ठीक है, जब इसे रिलीज किया, इट वाज रिलीज्ड एट टी इक्वल टू 0. जब इसे रिलीज किया तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ v थी. ओके, सेकेंड इन्होंने क्या किया, एट सेम टाइम t इक्वल टू 0 इन्होंने एक क्यू बॉल को भी रिलीज किया. ठीक है, लेकिन A और B के बीच में एक स्ट्रिंग, एक रस्सी बांध दी, एंड A और एंड B के बीच में एक रस्सी बांध दी. एंड दिस बॉल वाज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव और रेस्ट्रिक्टेड टू गो थ्रू दिस वे. ओके, एंड टाइम टेकन बाय दिस बॉल Q to go from A to B is TQ. So what we need to do is we need to compare TP एंड TQ. ठीक है, तो सबसे पहले सपोज ये पॉइंट C है और ये भी पॉइंट C है. बॉल P को A से लेके B जाने में अगर TP टाइम लगा तो A से लेके C जाने में कितना टाइम लगा होगा, TP बाय 2 लगा होगा. बाय सिमेट्री वी कैन सी दैट कि बॉल को जितना A से लेके C जाने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम C से लेके B जाने में लगेगा. तो A से लेके C जाने में इसे लगा TP बाय 2. सिमिलरली इसको भी इस पॉइंट में आने के लिए कितना टाइम लगेगा, TQ बाय 2. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट TQ बाय 2. TQ कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज रेडियस r एंड दिस इज r. सो ये दिस डिस्टेंस इज 2r. सो दिस इज 2r बाय वेलोसिटी v. And TQ by 2 will be how much? TQ by 2 will be R by V. So time taken by Q ball will be R by V to reach this point. Okay. Now time taken by P ball. Q ball के केस में उसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई थी v.
लेकिन कोई फोर्स नहीं था, ठीक है, तो इट मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बट इन केस ऑफ बॉल P, जब बॉल यहाँ कहीं होगी, ठीक है, तो इसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में n। इस नॉर्मल रिएक्शन का, नॉर्मल फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। लेट्स से इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस विल बी n cos थीटा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा फोर्स का। though this force is variable because theta is variable, थीटा के वेरिएबल होने से ये फोर्स भी वेरिएबल होगा, लेकिन इस बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ फोर्स तो हमेशा लगेगा, वेरिएबल फोर्स लगेगा, बट फोर्स लगेगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो एक्सिलरेटेड, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉइंट, इस बॉल को A से लेके C जाने में जो टाइम लगेगा वो इससे ज़्यादा लगेगा। इस केस में देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ वेलोसिटी थी v, दैट्स इट। लेकिन इस केस में अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, जब ये A से C जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ये भी इतना ही कवर करेगा जितना ये वाला पॉइंट कवर कर रहा है, जितना बॉल Q कवर कर रही है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों सेम ही कवर करेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में इसको इनिशियल वेलोसिटी v दी गई थी, लेकिन इसका एक्सेलरेशन 0 था। बट एज फार एज बॉल P इज कंसर्न्ड, इसको भी इनिशियल वेलोसिटी v दी गई, बट इसका कुछ एक्सेलरेशन था, ठीक है, इसका कुछ एक्सेलरेशन था विच वॉज नॉट इक्वल टू 0। इट हैज़ सम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम टेकन बाय बॉल B to reach from A to C, that is TP by 2 will be greater than TQ by 2। TP by 2 TQ by 2 से ग्रेटर होगा, जिसका मतलब क्या होता है, since TP by 2 greater than TQ by 2, सॉरी लेस देन TQ by 2, ये कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम कम लगेगा, है ना, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो TP by 2 इज लेस देन TQ by 2, सो TP इज लेस देन TQ। इस तरीके से हम इसे सोच सकते हैं, ठीक है।